नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रीक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप बहुत ही अच्छे हो एंड वी वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हम मिस आउट कर देते हैं एंड उसकी वजह से हम बाद में रिग्रेट करते हैं, राइट? तो आज का टॉपिक है बजटिंग एंड सेविंग योर 20s। यस, 20s एंड 30s ऐसा टाइम होता है जहाँ हमको जैसे ही पे चेक मिलता है हम उसको सोचते हैं कैसे एक्सपेंस आउट करें एंड बाद में हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। जो भी पैसा आता है हम तुरंत ही उसको खर्च कर देते, राइट। सो जैसे ही प्रेक्षा ने बोला बजटिंग एंड सेविंग योर 20s, तो मुझे अपने फर्स्ट जॉब की याद आ गई। जैसे ही मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी आई थी, मेरा सबसे पहला था कि मैं जो सैलरी आई है बैंक अकाउंट में उसको मैं एक्सपेंस आउट कर दूँ। बट थैंकफुली उस टाइम पापा थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे प्लान करो। और वी बीइंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स, तो हमने भी ओवर द टाइम रियलाइज किया कि हम अपनी जो इनकम है उसको कैसे प्लान आउट करें, उसको कैसे सेव करें, उसको कैसे एलोकेट करें। So we begin our budgeting with the very simple formula, which is income equals to expenses plus savings. This is the formula that we use every month while budgeting our budget. लेट्स इंटरप्रेट दिस फॉर्मूला क्विकली। इनकम इज व्हाट यू अर्न, फिर आती है एक्सपेंसेस की टर्न। एक्सपेंसेस इज व्हाट यू इनकर, एंड उसके बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज व्हाट यू कॉल एज सेविंग्स। So we'll start with expenses and we'll categorize the expenses into either needs or wants. These are two macro categories, but we should categorize in micro form also because it is very important that where we are spending, and if we don't categorize into micro, we won't be able to know. Yeah. So the important thing that we take care of while framing our budget is to ensure that every expense should be mapped to a particular category. That means it should be very specific and not generic. क्योंकि जब हम कुछ अमाउंट, छोटा सा भी अमाउंट इंकर करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम that amount might be considered as insignificant. But when we see this, accumulate this amount over the months, and at the year end when we try to analyze it, that amount might have become significant. Say for example, if you are giving donations or charity or Even shopping. like for shopping, we don't know like we are spending how much for gifts and how much we are spending on spa. We just accumulate it in like others. miscellaneous others category create कर देते हैं, and then others category create करने से issue ये होता है at the year end we are not able to analyze it properly. So we ensure that we don't create others category, we map it to a proper category so that year end पे tracking हो सके, and then we can analyze it if this expenditure is required or not. So we have made a list of things that we can show you that how you can categorize it. So these are the broad categories that we have created, which are recommended. Of course, you can customize it according to yourself and create what suits you. So usually people tend to do categorize into like housing, transportation and food. But we tend to mean that you should not be so generic and it should be specific. So in housing you can create a new tab like what are for property, what we give for mortgage or rent, then what are household repairs which are very occasional. So we just tend to add it in housing, but no, we should keep it different because it's a expense that we need to track on. So this is how you can categorize all your expenses. We'll link this Word file in the description below. So let's discuss savings. सेविंग्स को हमने 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट इज इमरजेंसी फंड, सेकंड इज शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इमरजेंसी फंड्स? इमरजेंसी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो हम साइड में रखते हैं कि अनसर्टेन सिचुएशन में हम यूज करें, जैसे कि जॉब लॉस हो गई या फिर हमारा कोई बिजनेस है जो फ्लॉप हो गया, या फिर जैसे यूट्यूब की इनकम होती है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट और वेरिएबल होती है। किसी मंथ बहुत ज्यादा होगी, किसी मंथ बहुत कम होगी, जिससे हम अपने एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसमें हमारा एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो ये फंड्स हमको तब काम देते हैं। तो हम यूजुअली करते हैं 3 से 6 महीने का फंड साइड में रखते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आप अपनी मर्जी से ये फंड का एक टारगेट सेट कर सकते हैं और आप ओवर द मंथ्स उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। ये वो गोल्स होते हैं जो हमको इमीडिएट बेसिस पे या थोड़े मंथ के बेसिस पे अचीव करने होते हैं। जैसे कि हमको कोई ट्रिप पे जाना है, ईयर एंड क्रिसमस पे हमको कोई ट्रिप पे जाना है, तो वील स्टार्ट सेविंग थोड़ा थोड़ा एंड इवेंचुअली वील हैव द मनी टू गो फॉर दोज ट्रिप्स
और या फिर हमको जैसे नया आईफोन आया है वो परचेज करना है, तो उसके लिए हम धीरे धीरे सेव करते हैं ओवर द ईयर, तो एक साथ वो खर्चा इतना बड़ा नहीं लगता है, वी हैव द फंड फॉर दैट। एंड थर्ड जो आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, वेडिंग के एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन के एजुकेशन, उन सब एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हम ये सेविंग रखते हैं। एंड इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे सेट एन ऑटोमेटिक डेबिट ट्रांसफर। रीजन बीइंग, जैसे ही वो सेट ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, आपको वो इनकम नहीं दिखेगी। और साइकोलॉजिकली ऐसा बोलते हैं ना प्रेक्षा, कि जैसे इनकम चली जाती है तो बस अब जितना जो अपने बैंक अकाउंट में बचा है उसी से एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं। सो इन दिस मैनर यू कैन प्लान योर लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब उनको आप पहले से ही मान लो कि वो एक्सपेंस Expense. है। So this is how we budget our expenses. We have created an Excel file which I'll also link in the description, and you can download it and customize it according to their needs. So this is the Excel file where we have created different tabs, which is for monthly budget, yearly budget, and every month individual, so that we can track the monthly basis also. So here we tend to put the amount which we are expecting, the income every month, every expense that we are expecting to spend, and the savings that we are expecting to make. Right? We'll put down the all over these things over here, and then we go to tab Jan, right? Then and all are hypothetical figures. These are all hypothetical figures. So let's start with, you have to, मतलब आपको जो इनपुट्स करने हैं वो इसके अंदर करने हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मंथली इनकम। मेरी जो इनकम है वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी, फिर प्रेक्षा की, देन गिफ्ट्स इज समथिंग व्हाट वी अनएक्सपेक्टेड, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स। उसके बाद जो बोनसेस होते हैं, जो ईयर एंड पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, वो आप फिगर्स इनपुट कर सकते हैं। एंड जैसे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट किया, ऊपर चेंजेस हो गए थे टोटल मंथली इनकम में। Similarly, for monthly expenses, we have created a broader categories. You can customize it as per your requirements. Say for example, rent, accommodation, council tax, water bill. उसमें आप ड्यू डेट का कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैक डाउन व्हेन यू हैव टू पे, की रेंट आपको कब पे करना है, काउंसिल टैक्स की कब पे करना है। और फिर जो है लास्ट जो कॉलम है, विच इज़ ऑल अबाउट मंथली सेविंग्स, इसको हमने 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया है: इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे आप यहाँ पे फिगर्स इनपुट करेंगे, ऊपर जो है फिगर्स चेंज होते जाएंगे। जैसे एक्सपेंसेस में किसी मंथ में आपका एक्सपेंस मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है, तो यू कैन इनपुट ओवर हियर 75 pounds, which will automatically changes your expenses, and this shows how much income we are earning, and 57% is expenses that we make over here. So these graphs help us to know that how much we are expensing out of the income. Right. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जैसे बताई थी कि इनकम शुड बी इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग्स, सो देयर शुड नॉट बी एनी कैश बैलेंस लेफ्ट। सो हम 625, सो अगर जान में हमारा कैश बैलेंस 625 बचता है, तो अगर हमको इधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमको करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स है, दैट लाइक वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, सो वी टेंड टू ट्रांसफर दिस टू अ शॉर्ट टर्म गोल, सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 625 प्लस 625. So आप देख रहे हैं my cash balance goes to zero, and we have invested this amount into short-term goals. Then these will automatically calculated over here, right. And then we can do the variance analysis on a monthly basis. Yeah. So like if we are thinking to spend that to 1500, and we have just spent 1350, so in variance we calculate how much we have expected for the budget and how much we have spent. Right. So we know that this month we have saved 150 on the rent, and now we can help this to better that every month we attend to save 150, and then we can put it down to some other savings. Yeah. Right. And then we have created an yearly budget where we can budget how much income we are going to get for the year. Yeah. And then gifts and bonuses are something that we cannot expect. So it will be usually zero. And what actual happens is our gain. So this helps us in create variances where we put budget minus actual. So like if the salary of Aditya, supposedly it's 30,000 per year, so usually first month he got 2500,
So 27,500 is the variance. So that will accumulate over the months. राइट, जैसे जैसे आप फिगर्स इनपुट करेंगे तब आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे इसके। Yeah, these two will probably help us at the end of the year to analyze it. But savings help us, like if we think that we want to save 5,000 at the end of the year. So we tend to add every month over year, and as soon as it reaches up, actual reaches 5,000, we don't transfer any fund to emergency fund after the next month, and we will tend to transfer that to short term and long term goals. So it helps us in analyzing these things. So we have categorized our expenses and the savings. Now let's discuss how we can audit our expenses and save the money, which is more important, because expenses and savings तो हम कर लेते हैं, but how to do it in a better way, वो अब हम discuss करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ 50-30-20 रूल। ये बहुत ही पॉपुलर रूल है बजटिंग में, जिसमें बोलते हैं 50% ऑफ इनकम शुड गो टू नीड्स, 30% शुड गो टू वांट्स एंड 20% टू सेविंग्स एंड डेट रीपेमेंट। बट हम सजेस्ट करते हैं ये रूल एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है। से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी और लंदन, न्यूयॉर्क, इन सिटीज में रेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और बाकी एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो उस केस में 50% इट्स नॉट feasible. Like ये feasible percent हर के लिए possible भी नहीं है. It might go to 55%, 60%. So I would suggest. And if someone is earning like a lot, तो उसके लिए even 20% भी वो हो सकता है. Right. So it will depend from person to person. So customize this as per your requirement. Don't follow the rule blindfoldedly. तो हम क्या करते हैं? हम कैसे सेव करते हैं आदि? हाँ, तो अभी हमारे पेरेंट्स ने एक और क्राइटेरिया हमको सजेस्ट किया है कि जितनी आपकी एज है उतना परसेंटेज ऑफ इनकम आप सेव करो तो for long term. मिनिमम उतना तो हम सेव करते ही हैं. Right. Say for example, if a person is of 25 years, so 25% of income should go to long-term investment. Yes. This is the criteria which is feasible also. Like feasible आप also, yeah. ट्राई करो कि आप अपनी एज जितनी है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आप अपनी एज में उतना सेव भी ज्यादा कर पाएंगे. Right. This is the minimum. Like it's not कि 30% पर 25% सेव कर ले, 75% एक्सपेंस आउट कर दो. Yeah. So बाकी का जो है आप ट्राई करो कि अगर आप 25% से और इंक्रीज कर सकते हो, that would be good for you. बट मेक कंसिस्टेंट कि हम हर मंथ इतना सेव करें, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. सो लेट्स नाउ डिस्कस हाउ टू ऑडिट योर एक्सपेंसेस. जो अपने पास्ट में खर्चे किए उनको आप डिवाइड करो कि वो एक्चुअली आपको नीडेड थे या नहीं थे, तो आप उससे अपना बेटर आगे का एक्सपेंसेस प्लान आउट कर सकते हो कि यार ये हमको जरूरत ही नहीं थी, हमने ऐसे ही खर्चा कर दिया. तो हाउ टू कैटेगराइज कि क्या नीड है और क्या वांट्स है. तो जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंस इंकर किया है उसको आप दो ब्रॉडर कैटेगरीज में कैटेगराइज करो, नीड एंड वांट, कि ये अगर एक्सपेंस एक्चुअल में नीड में था या वांट में था. अगर इस तरीके से एनालाइज करेंगे, ऑडिट करेंगे, देन विल अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ ऐसी हमने कुछ डिस्क्रिपेंसीज की है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ नीड, दिस शुड बी पार्ट ऑफ वांट. सो दिस मैनर में हम अपना बजट जो है एक्चुअल अच्छे तरीके से, सेविंग्स जो है अच्छे तरीके से कैटर कर सकते हैं. इज लाइक हमारी कुछ नीड होती है कि हमको एक बैग चाहिए, तो हम उसको कम रेंज का भी ले सकते हैं. आवर नीड इज आवर बैग, बट आवर वांट इज वी वांट अ लग्जरी बैग. तो आप ऐसे कैटेगराइज करके आपको कितना उस पर स्पेंड करना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं. Right. तो हम जब शॉपिंग जाते हैं तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम ये रूल फॉलो करते हैं फॉर बिग टिकट आइटम्स. से फॉर एग्जांपल फोन हो गया या फिर और भी कुछ हो गया. सो हम ये रूल ऑफ 24 आवर फॉलो करते हैं. उसमें ये होता है कि हम डिसाइड करते हैं हमें ये लेना है, देन वी गो टू अ शॉप एंड सी की क्या है वो सब, एंड देन व्हेन वापस हम घर आते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं पीसफुल माइंड से, राइट प्रेक्षा, कि हमें चाहिए या नहीं एक्चुअल में वो. लाइक अगर हमारे पास 15 प्रो है तो हम एक बार तुरंत जाके 16 प्रो नहीं ले लेंगे. हम एनालाइज करेंगे घर आके कि हमें उसमें क्या अपग्रेड आए जो हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं है. हाँ, दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पल्स शॉपिंग, क्योंकि जब हम इमीडिएटली जाते हैं और इमीडिएटली बाय कर देते हैं, घर आके पीसफुल माइंड से सोचते हैं उसके बारे में, देन वी रियलाइज अरे यार ये चीज तो चाहिए ही नहीं थी हमें. ये हम लिस्ट लेके जाते हैं जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं. लिस्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप शॉपिंग विदाउट लिस्ट करने जा रहे हैं देन आप कुछ भी आइटम्स ले सकते हैं जो आपको जरूरत भी नहीं रहती है. फिर घर आके हम देखते हैं अरे यार ये तो ऑलरेडी हमारे पास था, राइट. या दिस इज लाइक विंडो शॉपिंग. जैसे हम टेस्को में जाएंगे, अगर कोई भी लिस्ट बना के नहीं जाएंगे ग्रोसरी की, तो हम क्या करते हैं पूरा टेस्को स्क्रॉल करेंगे
और उसमें कुछ भी लेके आ जाते हैं हम लोग। जैसे आइसक्रीम की नीड भी नहीं थी बट हमको आइसक्रीम दिख गई तो हमने वो ले ली। जो चेकआउट काउंटर्स पे वो लोग चॉकलेट्स रखते हैं या वो चीजें रखते हैं, तो वो चीज हमको अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कि हम वहाँ वेटिंग में खड़े हैं तो चलो ये भी ले लेते हैं, काम आ जाएगा कभी। तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं और हम उस पर स्टिक करते हैं। हम ग्रोसरीज के लिए क्या करते हैं कि हम अलग अकाउंट सेटअप कर देते हैं जो हम दोनों यूज करते हैं और हम उसी कार्ड से हमारे ग्रोसरीज का शॉपिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि उससे एक पता चल जाता है कि एक्चुअल में पर मंथ एक्सपेंडिचर हो कितना है ग्रोसरी में। अगर कॉमन पूल, अगर से फॉर एग्जांपल जो आपकी जिस बैंक अकाउंट में आपकी इनकम आ रही है उससे से आप ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर इनकम आउट करोगे, पता ही नहीं चल पाएगा कितने पर मंथ कितना एक्सपेंस हो रहा है। कभी आदित्य कर रहा होता है, हाँ, कभी मैं कर रही होती है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हम पर मंथ कितना स्पेंड कर रहे हैं। इसकी जगह हमने क्या किया, एक अलग अकाउंट खोला है जिसमें हम सिर्फ ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं। तो उससे हम टैप कर सकते हैं कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं ग्रोसरीज पे, विच मेक्स अस कि हम ओवर बजट नहीं कर रहे हैं, अंडर बजट तो होता नहीं है इसमें बट ऐसा नहीं है कि हम बहुत ओवर जा रहे हैं, बहुत बाहर का खाने लग गए हैं, विच इज वेरी अनहेल्दी। तो हमको ये सब ट्रैक करने में वो हेल्प करता है। यस, लास्टली आता है हमारे सब्सक्रिप्शंस। कुछ सब्सक्रिप्शंस होते हैं जो हम ले लेते हैं बट हम उसमें सिलेक्ट कर देते कि ऑटो डेबिट, एंड हमको ऐसा लगता है कि वो एक मंथ ही कट रहा है बट वो धीरे धीरे आपके मंथ में से कटता रहता है। और अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा एंड कि वो हो रहा है। जैसे हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया बट हम वो यूज ही नहीं कर रहे, तो इट डजंट मेक अ सेंस कि वो हर मंथ आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है। तो आप ऐसा, अगर कोई जिम का एक्सपेंस है और कोई भी डायरेक्ट डेबिट जो आपने सेट किया है जो आपको यूज नहीं आ रहा है, तो उसको मेक श्योर करो कि आप कट डाउन करो। और उसमें भी जो डायरेक्ट डेबिट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए तो आप उनको भी कैंसिल आउट करो। वो अपना आप नहीं जाएंगे तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस वी यूज एवरी मंथ टू कैलकुलेट आवर एक्सपेंसेस एंड बजट आवर एक्सपेंसेस एंड इनकम इन अ बेटर वे। This might also help you, so share it with your friends. And if you are in your 20s, please start saving. It will help you in a longer term. We tend to like travel a lot, so we make a fund every month to put it in the travel fund so that we can travel wherever we want. This is how we do it, right? And it has proven it a very good thing for us after we had made the Excel sheet and how we budget every month. So we have also read a book which has helped us a lot to manage our expenses and change our mindset, which is The Psychology of Money. बहुत ही popular book है, best seller book है, and it will help you change the mindset of how you look at the money. So do give it a read. It might not completely apply to you, but you can change or customize it according to your needs. So if you have come this far, we know you have loved our video. So please drop a like. And comment your thoughts. और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए जिस पे हम वीडियो बना सके तो आप बताना हमको. Share it with your friends and families and help everyone to save in a better way. And the most important, subscribe. Guys, please subscribe to our channel. It gives us a lot of motivation. You are showing us a lot of love. But we want that our community to grow much more bigger. And we would love to bring such videos for you. मिलते हैं next video में. Thanks for watching. Bye guys.